My dear students, how are you? I sincerely hope that you must be in very high spirits and working hard for your coming competitive examination. प्यारे बच्चों, ये जो हाई यील्ड पॉइंट्स की सीरीज़ है, इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूले और वो पॉइंट्स जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करने में मदद कर सकते हैं, वो बताने की कोशिश करता हूँ। और आज इस सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 16 है और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। अगर कोई कंडक्टर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर वो कम चार्ज स्टोर कर सकता है तो उसकी कैपेसिटी कम है। एंड द कैपेसिटी is the ratio of the charge given to a conductor to the potential to which it is raised, that is C equal to Q by V. Then SI unit of capacity is farad because capacity equal to charge over potential difference. Therefore, units of capacity equal to units of charge over units of potential difference. So therefore, 1 farad is 1 coulomb over 1 volt, that is 1 coulomb per volt. Then in the CGS system, the unit of capacity is stat farad or electrostatic unit of capacity. And remember, 1 farad is 9 into 10 raised to power 11 stat farad. That means farad is a very big unit of capacity. And therefore, we make use of smaller units of capacity like millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad, where 1 millifarad is 10 raised per minus 3 farad, 1 microfarad is 10 per minus 6 farad, 1 nanofarad is 10 per minus 9 farad, 1 picofarad is 10 per minus 12 farad. Then dimensional formula of capacity. You know that capacity is charge over potential difference equal to charge and potential difference is work over charge. तो ये आ गया Q square by W. Now charge Q square means at square और work is M1 L2 T minus 2. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कैपेसिटी की डायमेंशन आ गई M-1 L-2 T4 A2. सो रिमेंबर M-1 L-2 T4 A2 is the dimensional formula of capacity and its dimensions are -1 in mass, -2 in length, 4 in time and 2 in current. Then the capacity of a conductor depends upon number 1 shape and size of the conductor. क्या shape है उसकी, क्या size है, उस पर depend करती है. It depends upon the nature of the medium in which the given conductor is placed. And it also depends upon the presence of other conductors in the neighborhood of the given conductor. So ये 3 फैक्टर हैं जिन पे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड करती है. But remember, the capacity of a conductor does not depend upon the nature of its material. वो किस मटेरियल का बना है कंडक्टर उस पर डिपेंड नहीं करती. Then कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. मान लो आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है. आइसोलेटेड मीन्स कि उसके आसपास कोई और कंडक्टर वगैरह नहीं है. तो सीरीएस सिस्टम में जो उसकी कैपेसिटी है दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेडियस. और न्यूमेरिकली का मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है लेकिन यूनिट्स डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, if the radius of a spherical conductor is 5 centimeter, then its capacity is 5 stat farad. Of course in CGS system. लेकिन SI में जो फार्मूला है that is C equal to 4 pi epsilon naught into small r. और आपको पता है कि 1 over 4 pi epsilon naught इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसलिए 4 pi epsilon naught की वैल्यू आ गई 1 over 9 into 10 power 9. तो ये C जो आ जाएगा ये आ जाएगा R ओवर 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. ये कौन से सिस्टम में है? SI में. इसका मतलब जब ये फार्मूला यूज़ करना है तो आपने रेडियस लेना है मीटर में, तो कैपेसिटी आ जाएगी फैरेड में. अब याद रखो जो अर्थ है इट बिहेव्स लाइक ए लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर. दैट मीन्स ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ वेरी लार्ज रेडियस. और इसका रेडियस आपको पता है अबाउट 6400 किलोमीटर. दैट इज 6.4 इंटू 10 पर 6 मीटर. और अगर मैं ये जो ऊपर फार्मूला C इक्वल टू स्फेरिकल कंडक्टर के लिए SI में मैंने जो फार्मूला लिखा है C इक्वल टू R ओवर 9 इंटू 10 पावर 9, इसमें मैं R की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि 6.4 इंटू 10 पर 6 मीटर के बराबर पुट कर दूँ तो कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी आती है लगभग 711 माइक्रोफैरेड. इसका मतलब क्या है?
कि माइक्रोफैरड अर्थ हालांकि बहुत बड़ा कंडक्टर है या है स्फेरिकल कंडक्टर, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोफैरड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थ की कैपेसिटी बड़ी थोड़ी है, इसका मतलब ये है कि जो फैरड है दैट इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ए सॉलिड स्फीयर, मान लो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और एक हालो स्फीयर है और दोनों का रेडियस सेम है, इसका मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम है। इसका मतलब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और एक हालो स्फीयर है, उनका रेडियस सेम है, तो बताओ उनकी कैपेसिटी की क्या रेशो होगी, तो आपने आंसर देना 1:1। अब एक टर्म और होती है इलास्टेंस। इट मे बी ए न्यू वर्ड फॉर यू। Elastance is the reciprocal of capacitance. It is denoted by S. Capacity is denoted by C and elastance by S. So therefore S equal to 1/C. अब इसके यूनिट क्या होंगे, जो 1 कैपेसिटी के हैं और कैपेसिटी का है फैरेड, तो आ गया 1/फैरेड, वो बन गया फैरेड इनवर्स। और इसको DARAF भी कह देते हैं। ये हमने फैरेड काउंट कर दिया, फैरेड है FARAD, तो ये बन गया DARAF। देन डायमेंशंस ऑफ इलास्टेंस, तो इलास्टेंस की डायमेंशन होगी जो 1 कैपेसिटी की हैं, और वो जो मैंने ऊपर कैपेसिटी की निकाली हैं उसमें पावर चेंज कर दो उनका साइन, तो ये आ जाएंगी M1 L2 T-4 A-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलास्टेंस। देन व्हाट इज ए कैपेसिटर? A capacitor is a device used to store charge and hence energy, क्योंकि जिस भी सोर्स में चार्ज स्टोर करेंगे उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ a capacitor? So remember, the working of a capacitor is based upon the principle that the capacity of an insulated conductor increases when an uncharged earth connected conductor is placed near it. मान लो आपके पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, उसके पास आप एक अनचार्ज, उसको हम चार्ज दे देते हैं जो इंसुलेटेड है, उसके पास आप एक अनचार्ज अर्थ कनेक्टेड, जिसको ग्राउंडेड भी कह सकते हैं हम, कंडक्टर रख दो, तो जो चार्ज कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो पहले से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। And that is the principle of working of a capacitor. Now there are 3 types of capacitors: parallel plate capacitors, spherical capacitors and cylindrical capacitors. आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन कंपटीशन में कई बार वो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको फार्मूले इनके भी बता दूंगा। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यू नो दैट a parallel plate capacitor consists of 2 plates. One of the plates is insulated and is given a charge, and the second plate is earthed. The 2 plates are placed close to each other and parallel to each other. The shape of the plates may be square, rectangular or circular, and they are known as the coatings of the capacitor. Coatings of the capacitor. And the medium in between the 2 plates is known as the dielectric, and dielectric may be air, then it may be mica, it may be any other dielectric, it can be electrolyte also, that depends upon the capacity we require. So therefore a parallel plate capacitor consists of 2 plates, one of which is insulated and is given a charge, whereas the second plate is earthed. अब इसकी कैपेसिटी का फार्मूला है C=ε0A/d। ε0 आपको पता ही है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और ये फार्मूला तब लगाते हैं व्हेन द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम। A इज़ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन अगर दोनों प्लेट्स में कोई मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, then the capacity becomes ε0AK divided by D. That means the capacity of a parallel plate capacitor is directly proportional to K, और K मैंने आपको बताया क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, और तीसरा फैक्टर है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जितना प्लेटों में डिस्टेंस कम होगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। अब व्हेन a dielectric of thickness T is placed between the 2 plates of a parallel plate capacitor, then its capacity is given by
इसको हम सी डैश भी कह सकते हैं, सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के. सो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T is placed between the plates of a parallel plate capacitor. ये जो ऊपर मैंने आपको फार्मूला नंबर 2 लिखा है जिसमें एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी आया, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो है जितना प्लेटों में डिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है दैट कम्प्लीटली फिट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. लेकिन अगर उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T जो है दैट इज लेस देन D, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी इंटू 1 माइनस के. अब देखिए अगर मान लो मैं टी इक्वल टू डी पुट कर दूँ इस फार्मूले में तो ये वही बन जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाई डी. देन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, नोट करो डिपेंड नहीं करती जिन फैक्टर्स पे, वो आपको बता रहा हूँ. नंबर 1 ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, उस पर डिपेंड नहीं करती. दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तीसरा चार्ज गिवन टू द प्लेट्स, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कि आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी हर एक प्लेट का एरिया मान लो A है और उसकी कैपेसिटी है C. अब आप ऐसा करो, एक प्लेट का एरिया डबल कर दो, A की बजाय 2A कर दो, और दूसरी का हाफ कर दो, A की बजाय A/2 कर दो, तो जो कैपेसिटी होगी ना उसकी, याद रखना, वो इट विल बी रिड्यूस टू हाफ. क्यों? कि अब जो इफेक्टिव एरिया ईच प्लेट का होगा दैट विल बी A/2. पहले A था, अब बेशक A का 2A किया, लेकिन क्योंकि दूसरी का A/2 कर दिया तो जो इफेक्टिव एरिया हमने लेना है वो लेना है A/2. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. देन एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाई U इक्वल टू, ये 3 फार्मूले हैं, हाफ QV इक्वल टू हाफ Q² बाई C इक्वल टू हाफ CV², वेयर द सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. अब कई बार इनकी डायमेंशन पूछ सकता है वो कहता है Q इंटू वी की क्या है, तो अगर आपको पता कि हाफ QV एनर्जी है तो Q इंटू वी एनर्जी वाली डायमेंशन यानी कि M1L2T माइनस 2, इस तरह हाफ Q² बाई C या Q² बाई C की वही होंगी, इस तरह हाफ CV² या CV² भी उसकी डायमेंशन भी M1L2T माइनस 2 ही होंगी. और कई बार पूछते हैं कि ये जो एनर्जी स्टोर होती है ये कहाँ पे स्टोर होती है, तो आपने कहना दिस एनर्जी स्टोर्ड in the electric field between the plates of the charged capacitor. जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं तो उसकी प्लेटों में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है. देन एनर्जी डेंसिटी, that is the energy stored per unit volume in the electric field between the plates of a charged capacitor is given by small u equal to, इसके 2 फार्मूले हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, या ये हो सकता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. क्यों? क्योंकि जो E की वैल्यू है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा क्या है? ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ ईच प्लेट विच इज चार्ज ओवर एरिया ऑफ ईच प्लेट. देन you know that the 2 plates of a parallel plate capacitor carry opposite charges, एक पे प्लस Q दूसरे पे माइनस Q, and you know that unlike charges attract each other and therefore the force of attraction between the plates of a charged parallel plate capacitor is given by F equal to half Q into E. Q का मतलब जो चार्ज दिया, E का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया. नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ Q और E की वैल्यू आपको पता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये पुट कर दी. फिर ये मैंने हाफ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट वैसे लिख दिया और सिग्मा चार्ज ओवर एरिया लिख दिया, तो ये बन गया F इक्वल टू हाफ Q² बाई एप्सिलॉन नॉट A. तो ये फार्मूला भी हो सकता है. देन इट इज़ आल्सो इक्वल टू हाफ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट A लिख दिया, और Q इज सिग्मा इंटू A, तो आ गया Q² मीन्स सिग्मा स्क्वायर A², यहाँ पे पुट किया तो F बन गया इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू A. तो ये एक और फार्मूला आ गया. अब मैं A को नीचे ले आता हूँ तो F ओवर A दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम प्रेशर भी कह सकते हैं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. सो रिमेंबर ऑल दीज फार्मूले. देन द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
विद ए मेटेलिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। आगे जो मैंने ऊपर आपको एक फार्मूला बताया था वो बताया था व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। लेकिन मान लो हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में किसी मेटल की कोई स्लैब रख देते हैं, जैसे कॉपर की स्लैब रख दी, एल्युमिनियम की स्लैब या किसी और मेटल की, तो जिसकी थिकनेस टी है विच इज लेस देन डी। एंड व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। देन द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी। तो बहुत बार ऐसे आता है आपको T की वैल्यू दे देगा कि इट इज़ 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, 2/3 जो भी हो, तो आप कैपेसिटी निकालेंगे तो मान लो 1/4 है तो T जगह 1/4D लिख देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लेकिन अगर जो मेटेलिक स्लैब आपने रखी उसकी थिकनेस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है, तो जब मैं T की जगह भी D पुट करूँगा इस फार्मूले में तो C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस डी। D माइनस डी ज़ीरो, तो कैपेसिटी आ गई इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक ऐसी मेटेलिक स्लैब रख दें जो उसकी प्लेटों में पूरी तरह फिट आए, यानी कि उसकी थिकनेस जो है वो जितना प्लेटों में डिस्टेंस है उसके बराबर हो, तो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट। और किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब कि यू कैन गिव इट एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो याद करो, एक प्लेट को हम इंसुलेट करते हैं कैपेसिटर की, दूसरी को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, और जब वो मेटल की बनी होती हैं दोनों प्लेटें, और जब बीच में मेटेलिक स्लैब होगी तो वो मेटेलिक स्लैब की थिकनेस अगर दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस के बराबर है तो वो उनको टच करेगी, तो वो टोटल दोनों प्लेटें मिला के उनके बीच में स्लैब मेटेलिक मिला के एक मेटल का पीस बन गया। एंड यू नो दैट मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, उनमें से चार्ज बड़ी आसानी से निकलेगा। तो जो भी आप चार्ज इंसुलेट प्लेट को दोगे वो मेटेलिक स्लैब में से होता हुआ अर्थ में जाता जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि अगर हम किसी वाटर टैप के नीचे एक बाल्टी रख दें जिसका बॉटम जो है वो टूटा हुआ है, तो जितना मर्जी आप जितनी देर मर्जी आप पानी चलने दो उसमें कोई पानी नहीं भरेगा। इसी तरह इसका मतलब उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी बाल्टी की। इस तरह यहाँ भी उस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे मैंने आपको बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक ही रखते हैं प्लेटों के बीच में तो कैपेसिटी कितनी होगी। तो फार्मूला था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/K। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, सो इफ़ ए नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ थिकनेसेस T1 T2 T3 सो ऑन अप टू Tn एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 K2 K3 so on up to Kn are placed between the plates of a parallel plate capacitor, then its capacity is given by C equal to, या C डैश भी हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा टोटल थिकनेस अब की ऐड कर दो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू Tn, और प्लस आ जाएगा T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2 प्लस T3 ओवर K3 प्लस Tn ओवर Kn। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn है इट इज़ लेस दैन D। सबका सम जो है ये D से कम है। अगर इनका सम D के बराबर हो तो यहाँ भी मैं D लिख सकता हूँ, तो D माइनस डी क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो D माइनस डी ज़ीरो आ गया, तो क्या बचा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस so on up to Tn divided by Kn. That is the formula for the capacity of the given parallel plate capacitor. अब कई बार पूछते हैं कि what is the use of ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या कह सकते हैं कि हाउ कैन यू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया इससे पहले कि जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इंसुलेटेड प्लेट को चार्ज देते हैं तो जो दूसरी प्लेट की अंदर वाली साइड है वो उस पर उल्टा चार्ज उतना इंड्यूस हो जाता है, और जो प्लस चार्ज इंड्यूस होता है दैट फ्लोज टू दी अर्थ, क्योंकि दूसरी प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। तो मान लो हमें कहीं पे अपने एक्सपेरिमेंट में या कहीं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़े, सो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन, मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने उसकी प्लेटों में एक बैटरी जोड़ दी ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी चार्जिंग हो गई और वो फुली चार्ज हो गया। अब क्या करो, बैटरी को तो उसमें रहने ही दो, कनेक्ट किया हुआ ही रहने दो, कीप द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसकी प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दो। तो हमने देखना कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस किस पे इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इन पे हमने इफेक्ट देखना है। तो बेटा जी सुनो ध्यान से, क्योंकि हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ ही रखा है और बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा इंसुलेटेड प्लेट से, नेगेटिव जोड़ा जो ग्राउंडेड प्लेट है, इसलिए जब तक हम बैटरी को कनेक्ट करके रखेंगे उसकी प्लेटों में, कैपेसिटर की प्लेटों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। सो पहली चीज़ है कि इन दिस केस V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट विल रिमेन द सेम इक्वल टू V नॉट। V नॉट का मतलब ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो तब था जब प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम था, जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी प्लेटों में इंट्रोड्यूस नहीं करी थी। लेकिन जो कैपेसिटी है that will increase k times, k is the dielectric constant of the given dielectric slab। अगर पहले C नॉट थी तो अब हो जाएगी k इंटू सी नॉट। ये हमने देखा ऊपर, इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देन जो चार्ज स्टोर है, चार्ज होता है आपको पता C इंटू वी, अब C जो हो गया वो कितना हो गया k इंटू सी नॉट, तो V तो पहले जितना ही रहना, जिसका नाम V नॉट भी लिख सकता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा k और C नॉट इंटू वी नॉट। C इंटू वी क्या होता है, चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट। Q नॉट का मतलब था चार्ज स्टोर्ड, चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स वाज एयर और वैक्यूम। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहा जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टेंस प्लेटों में सेम है, वो चेंज नहीं किया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही रहेगा जितना डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से पहले था। अब एनर्जी स्टोर्ड का आ गया हाफ CV²। अब C मैंने आपको बताया कितना हो जाएगा, k टाइम्स पहले से हो जाएगा, k इंटू सी नॉट, और पोटेंशियल तो पहले जितना ही रहना V नॉट, तो ये आ जाएगा हाफ k C नॉट इंटू वी नॉट स्क्वेयर। एंड व्हाट इज हाफ C नॉट इंटू वी नॉट स्क्वेयर, दैट इज U नॉट, द एनर्जी स्टोर्ड इन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम और डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स वाज एयर और वैक्यूम, तो वो k टाइम्स हो जाएगी। सो दो चीज़ें सेम रही इस केस में, कौन कौन सी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी जो है वो k टाइम्स इंक्रीज कर गए। अब दूसरा केस है कि आपने चार्ज कर लिया, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी। अब जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले जितना नहीं रहा, लेकिन चार्ज क्योंकि कर चुके थे हम कैपेसिटर को, तो इस केस में चार्ज जो है दैट विल रिमेन दी सेम। तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा चार्ज Q विल रिमेन द सेम इक्वल टू Q नॉट। Q नॉट का मतलब जो चार्ज तब था जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करी थी और अभी बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कर दिया इंट्रोड्यूस, फिर हमने देखना है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। और कैपेसिटी तो इस केस में भी k टाइम्स हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। और V पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज ओवर कैपेसिटी। अब चार्ज तो पहले जितना ही है, कैपेसिटी कितने गुना अब हो गई, k टाइम्स, तो k इंटू सी नॉट आ गया। एंड Q नॉट ओवर C नॉट इज V नॉट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द मीडियम वाज एयर डिवाइडेड बाई k। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है k टाइम्स कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड V ओवर D, ये 1 ओवर D पहले लिख लिया, और ये जो V है ये भी ऊपर प्रूव किया मैंने, V नॉट बाई k आ जाएगा। एंड 1 ओवर k पहले लिख लो इंटू V नॉट बाई D। एंड व्हाट इज V नॉट बाई D, दैट इज E नॉट, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, डिवाइडेड बाई k। इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से k टाइम्स कम हो जाएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड पे आओ, हाफ Q² बाई C इक्वल टू हाफ, एंड व्हाट इज Q, ये ऊपर मैंने प्रूव किया, Q जो है दैट इज इक्वल टू
दैट रिमेन्स द सेम, क्यू नॉट ही रहा वो, तो क्यू नॉट स्केयर, लेकिन कैपेसिटी जो है वो के टाइम्स इंक्रीज कर गई, तो के इंटू सी नॉट, ये आ गया 1/k इंटू हाफ क्यू नॉट स्केयर बाई सी नॉट, एंड हाफ क्यू नॉट स्केयर बाई सी नॉट इज यू नॉट. यू नॉट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड व्हेन दी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स वाज एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई के. इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो भी के टाइम्स पहले से कम हो जाएगी. अब एक और चीज़ याद रखना भाई, मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, आप कैपेसिटर और एक कोई रेजिस्टेंस आर सीरीज़ में जोड़ के उनके साथ एक बैटरी जोड़ देते हैं सीरीज़ में, तो आहिस्ता आहिस्ता उस कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टर. इसको सी आर सर्किट भी बोल देते हैं. सी मीन्स कैपेसिटर, आर मीन्स रेजिस्टर. तो ड्यूरिंग चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता चार्ज बढ़ता है, ग्रो करता है, एंड द ग्रोथ ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1 ओवर आर सी इंटू टी. प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला. यहाँ पे जो R इंटू सी है, अगर आप R की डायमेंशन पुट करें, C की डायमेंशन पुट करें, फिर R इंटू सी की देखें, वो टाइम की आ जाएंगी, एंड इट इज़ कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन सी आर सर्किट. बोलो क्या कहते हैं इसको? टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सी आर सर्किट. अब मैं इसको डिफाइन करूंगा. अगर मैं टाइम लेता हूँ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सी आर सर्किट, तो देखते हैं चार्ज कितना हो जाएगा. ये जो ऊपर इक्वेशन है इसमें स्मॉल टी की जगह पुट कर दो आर इंटू सी, तो क्या आ गया? क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1 ओवर आर सी है ही है, इंटू टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? आर सी. आर सी से आर सी कैंसिल, आर से आर गया, सी से सी गया, तो ये क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -1 बचा, और ये नीचे आके ई की पावर +1 हो जाएगी, तो आ जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 -1 ओवर ई इक्वल टू क्यू नॉट. ई एलसीएम आ जाएगा ई -1 ओवर ई, और जो ई है आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और इसकी वैल्यू होती है 2.7183. तो ये वैल्यू ई की मैंने यहाँ पुट कर दी, तो क्यू आ गया क्यू नॉट इंटू 1.7183 ओवर 2.7183. अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.63 क्यू नॉट, यानी कि 63% ऑफ क्यू नॉट. इसका मतलब क्यू जो है वो जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है उस कैपेसिटर पे जब वो पूरी तरह चार्ज होगा, उसका लगभग कितने परसेंट हो गया? 63%. सो लेट अस सी हाउ कैन वी डिफाइन टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट. रिमेंबर, एक बार फिर सुन लो, किसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट? C इंटू आर को. एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सी आर सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ग्रोज टू बढ़ के हो जाता है कितना? 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. अब मान लो जब पूरी तरह चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा? वो जो कैपेसिटर है अब उसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज उसका लीक होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टर. एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज गिवन बाई q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेज टू द पावर -1 ओवर आर सी इंटू टी. ये इक्वेशन जो ऊपर बताई है वो चार्जिंग के लिए, ये जो है दिस इज़ फॉर डिस्चार्जिंग. अब यहाँ फिर देखो, अगर मैं टी इक्वल टू आर सी लेता हूँ, यानी कि टाइम कांस्टेंट के बराबर लेता हूँ, तो क्यू आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई रेज टू पावर -1 ओवर आर सी इंटू आर सी, वो बन गया क्यू नॉट ओवर ई, और ई की वैल्यू पुट कर दी 2.7183 इंटू क्यू नॉट आ गया, और 1 ओवर 2.7183 आ जाएगा 0.37 क्यू नॉट. दैट मीन्स ये जो क्यू बना ये बन गया 0.37 क्यू नॉट, और इट इज़ अबाउट 37% ऑफ क्यू नॉट. अब देखिए वहाँ पे टाइम कांस्टेंट वो टाइम था जितने टाइम में चार्ज कैपेसिटर पे ग्रो करके हो गया अबाउट 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज. अब यहाँ पे डिके करके कितना रह गया? 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज रह गया. सो दो तरीके से अब देखो मैं डिफाइन करूँगा. एक हो गया कि टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर सर्किट में बी डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर डिकेज टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. अब देखो वहाँ पे मैंने क्या कहा कि इट ग्रोज टू 63%, तो यहाँ पे डिकेज टू, अगर डिकेज टू है तो डिकेज बाई कितना हो गया?
decays to 37, decays by 63%. So therefore, if I combine the two, I can say that time constant of CR circuit may be defined as the time during which the charge on the capacitor grows to or decays by. अगर चार्जिंग हो रही है तो grows to, अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो decays by 63% of its maximum value. और आपको पता है कि जब चार्जिंग होगी कैपेसिटर की तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, लेकिन वेदर इट इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग द करंट डिकेज टू zero to its maximum value according to the equation I equal to I naught into e raised to the power minus 1 over RC into T. So both during charging as well as during discharging, चार्जिंग में चार्ज बढ़ता है, डिस्चार्जिंग में कम होता है, लेकिन करंट जो है वो डिके करता है दोनों केसेस में फ्रॉम I naught to 0. And the equation according to which it happens is I equal to I naught into e raised to power minus RC into T. यहाँ भी RC को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट. अब यहाँ पे करंट जो है वो रह जाएगा T इक्वल टू RC के बाद रह जाएगा 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू वेदर इट इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. देन द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर. आपको पता है स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फीयर होते हैं, एक इनर दूसरा आउटर. दोनों में से एक को इंसुलेट करके चार्ज देते हैं, दूसरे को अर्थ कर देते हैं. तो मान लो आउटर स्फीयर को हम अर्थ करते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R1 R2 ओवर R2. ये फार्मूला बेटा आपने याद रखना है. हियर R1 इज़ द रेडियस ऑफ द इनर स्फीयर एंड R2 इज़ द रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर. और जो K है इट इज़ द डायलैक्टिक कांस्टेंट ऑफ द डायलैक्टिक बिटवीन द टू स्फीयर. जो स्पेस है दोनों में जो भरा हुआ उस जिस मीडियम से उसका डायलैक्टिक कांस्टेंट है. और अगर वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, एयर या वैक्यूम है, तो फिर K आप 1 ले सकते हैं. तो फिर यहाँ पे रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये तब फार्मूला लगाना है जब आउटर स्फीयर को हमने चार्ज किया है, अर्थ किया. लेकिन अगर इनर स्फीयर को करें हम अर्थ तो फिर क्या होगा, देन द कैपेसिटी विल बी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 R2 ओवर R2 माइनस R1. ये तो बिल्कुल सेम फार्मूला है, लेकिन इस केस में प्लस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. अब आप कहेंगे ये फैक्टर कहाँ से आया, क्योंकि इस केस में वो जो दोनों का स्फीयर्स का एक तो बना कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी तो वही है जो ऊपर लिखी है मैंने, प्लस जो आउटर स्फीयर है दैट बिहेव्स लाइक एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R2. और आपको मैंने ऊपर बताया SI में आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R हैज़ कैपेसिटी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. और क्योंकि यहाँ पे R इक्वल R2 है तो R2 आ जाएगा. अब ये जो दो कैपेसिटर बने दे आर इन सीरीज, और आपको पता है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उनकी कैपेसिटी ऐड हो जाती है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलो कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में आपको पता है दो सिलेंडर्स होते हैं, एक इनर दूसरा आउटर. एक को हम कर देते हैं इंसुलेट और चार्ज कर देते हैं और दूसरे को ग्राउंड कर देते हैं, जहाँ अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिसको अर्थ कह सकते हैं या ग्राउंडेड कह सकते हैं. तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला है C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू L लेंथ है ई सिलेंडर की, log B over A to the base C. यहाँ पे A जो है that is the radius of the inner cylinder and B is the radius of the outer cylinder. L is the length and K is the डायलैक्टिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स. और अगर ये एयर या वैक्यूम होगा तो यहाँ पे मैं K इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा. देन द कैपेसिटी ऑफ ए वेरिएबल ट्यूनिंग कैपेसिटर. आपने देखा जो रेडियो वगैरह है उसमें हम ट्यूनिंग करते हैं. एक्चुअली ट्यूनिंग करने से हम स्टेशन बदलते हैं, लेकिन स्टेशन क्यों बदलता है, क्योंकि उसके अंदर एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है. तो ट्यूनिंग करने में हम उसकी कैपेसिटी को चेंज करते हैं. तो मान लो वो जो कैपेसिटर है वो n प्लेट्स हैं उसमें, और उसकी कैपेसिटी होगी C इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, वेयर A is the area of each plate and D is the separation between each pair of plates. एक्चुअली होता क्या है कि जो n प्लेट्स हैं वो मिलके बनाती हैं n-1 कैपेसिटर्स इन पैरेलल. तो
उन हर एक की कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो वो n-1 टाइम्स ऐड होके बन जाती है n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो जितनी प्लेटें हम यूज़ करेंगे उतनी n की वैल्यू आ गई, उसी के हिसाब से उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो चेंज करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसा कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी पुश कर दें, प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन एकदम मिल जाए और आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी